Good morning, student. This is KK Bhatt here. Dear students, once again I am here with the video of class 9 English. The poem today I am going to teach you the poem. A poem. The name of the poem is The Snake Train. This poem is composed by W. Ross. Dear students, I think everyone know what is snake. I know everyone know what is a snake. Everyone know what is a snake. When you can see a snake in your home, in your house, or in other side, just everyone become scared, and they just search a stick, so that they kill a snake easily. But you can see and observe that snake always trying to find a safe place whenever a glance of the man search the snake. जैसे मनुष्य की आंखें जब उसको खोजती हैं, जो खोज लेती हैं, जब वो पास जाता है तो उसे आभास हो जाता है कि someone is near it just started to run away from that side. But unfortunately, we are determined to kill him. That is why we just want to find out the stick and call other people to kill the snake. It is bad. Why? Because according to poets, every snake is not poisonous. We can say only 5% snake is poisonous. Only 5% snake is poisonous. Rest are not poisonous. And the other thing is that when a snake just want to save itself from the eyes of the human, it's just repelled there. It's just moved from there and want to hide in the Mars blast or so any other places. Dear students, this is a small poem. What the poet want to tell us, just see here. Here are given some difficult word. See here, difficult word is in the poem pursuing. It means chasing. You understand what is the meaning of chasing? Next is curving. It means twist. Twist karna. Blindly moves with sleeping, and stroke hitting of the stick. It means stick से प्रहार करना. So dear students, here are some difficult words in the passage. Now we are on the poem. Here देखो दिया है बेटा, the snake trying to escape, to hide itself from the pursuing stick. Do you understand? When a man just go before a snake with a stick, at that moment, snake is trying to hide itself from the pursuing for the chasing stick. And whenever he is just not able to run, at that moment, with sudden curving of thin means, you understand, the body of the snake is thin. मतलब जो सांप की स्नैक और बॉडी होती है, स्नैक की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, thin होती है. क्या करता है उसको? With sudden curving, whenever he realize the fear, जैसे उसे आभास होता है खतरे का, he just twist its body. सबसे पहले क्या करता है? बॉडी को ट्विस्ट करता है, फोल्ड करता है, मोड़ता है. And then after he tried to hide itself from the pursuing stick. जो उसके पीछे स्टिक आ रही है उससे वो बचने का प्रयास करता है. Long body, of thin long body. It means
जो उसकी लंबी बॉडी है, जो शरीर उसका जो लॉन्ग बॉडी है, जो लॉन्ग शरीर उसकी है, उसको क्या करता है, ट्विस्ट करता है। ही जस्ट वांट टू twist her long thin bodies so that it may be he save itself from the pursuing of the stick, ताकि अपने आप को वो बचा सके। ट्विस्ट करके आगे वो छूटने का प्रयास करता है, अपने बॉडी को कर्विंग करता है और वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। आप कर्विंग जानते हो, जब इसने जाता है तो कैसे करता है, अब देखो ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, ठीक है, तो इस तरह से करते हुए ऐसे करके वो भागता है, सीधे नहीं जाता, वो हमेशा कर्विंग करते हुए भागता है। तो वही पोएट कह रहा है कि विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप्स। अब पोएट ये कह रहा है कि भाई देखो, आप स्नेक को मारने जा रहे हो, ठीक है, तो वो डर करके आपसे भाग रहा है, तो थोड़ा उसको ऑब्जर्व करो, देखो उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर को, उसकी ब्यूटीफुल सीन को, जस्ट बी ऑब्जर्व the beautiful body of the snake. So when he just curving its body, its long body, how beautiful! It means it was very beautiful and graceful. और his shape, यानी अपने आकार में, अपने उस आकार में, अपने उस कर्विंग शेप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्नेक इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल, वेरी नाइस। So whenever you want to kill a snake and when you observe the snake closely, realize the beauty of snake, at that moment you change your mind. आप क्या करोगे, दिमाग को चेंज करोगे, you change your mind not to strike on snake, not to strike on snake, यानी आप snake पे प्रहार नहीं करोगे। तो here in this first stanza, how beautiful and graceful all his shape when he just slide movement when he curving his bodies. He glides करना मतलब होता है, आप देखते हो फिसलते हुए जाता है स्नेक, ठीक है, इस जो स्नेक होता है वो ऐसे करते हुए जाता है, फिसलते हुए जाता है, आप देख सकते हो ना, ऐसे करते हुए जाता है, तो ग्लाइडिंग करता है, वो फिसलता है, मूव्स करता है, आगे बढ़ता है। तो कह रहा है ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर वे। जैसे मान लो अभी वाटर है और वाटर वे के पास में क्या होते हैं, मार्सी होते हैं, रीड होते हैं, ठीक है, तो अगर ये वाटर वे जो पानी का मार्ग है, मतलब अब आप जैसा मान लो अगर उसके सामने डिफिकल्टीज है, इधर वाटर है, इधर आप खड़े हो और यहाँ स्नेक है, तो आप इधर नहीं भागेगा, वो किधर भागेगा, वाटर तरफ भागेगा, ठीक है, वाटर तरफ भागे, उसे ग्लाइड करते हुए, उसे फिसलते हुए, स्लिप करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो वही पोएट हियर सेज दैट ही ग्लाइड थ्रू द वाटर वेज, या जो पानी का मार्ग है उसको चूज करता है भागने के लिए, फ्रॉम द स्ट्रोक, फ्रॉम द हिटिंग ऑफ द स्टिक, फ्रॉम द हिटिंग ऑफ द, इट इज क्लियर। सपोज दैट यू आर हियर and snake is there, the snake just go opposite on you, although the way is not good, it is the watery way, but he choose the watery way so that he save himself from the hitting of the stick, ताकि जो लाठी का प्रहार है उससे अपने आप को क्या कर सके, बचा सके, इसलिए उसकी तरफ वो भागता है। आगे देखो, अब यहाँ क्या कह रहा है पोएट, अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओ ह्यूमन बीइंग डू नॉट गो टू किल हिम, लेट हिम गो ओवर द वाटर, पानी के ऊपर अगर वो जा रहा है उसे जाने दो, उसको आगे बढ़ के मारने की कोशिश ना करें। पोएट यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि इफ let him go, if you want to go away from there over the water, let him go, उसे जाने दो यार, उसको मारो मत, उसको प्रहार मत करो, तो let him go over the water into the reed, here reed the meaning as is given in your book, water marsh plant with thick stem, यानी मार्स प्लांट विथ थिक स्टेम। आप जानते हो मार्स प्लांट, जैसे आप पानी जहाँ होता है आप देखो कौन झाड़ियाँ उगाती है, झाड़ियाँ, बुसेस जिसको आप कहते हो, बहुत सारी बुसेस
जो होती है वो उगाती है, और उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। अगर स्नेक का कलर क्या है? ग्रीन है, ठीक है। तो क्या लाइक कैमेलियन वो क्या करेगा? उसी में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां जाकर के उन ग्रीन जो रिड्स है उसमें अपने आप को हाइड कर सकता है, उनके बीच में अपने कलर को छुपा सकता है। इफ़ यू वांट, अगर कोई सर्च करना चाहे इट में भी, वो अपने आप को हाइड कर सकता है। तो वही पोएट ये कह रहा है कि ओल लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड। उस मार्स में उसको जाने दो, मार्स प्लांट में, ताकि उसको छिप सके विदाउट हर्ट, बिना उसको नुकसान हो जाए। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। कह रहा है कि अब कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं। उसमें से अगर कोई स्मॉल है, ये स्मॉल है, ग्रीन कलर का स्नेक है, ठीक है, ग्रीन कलर का स्नेक है, स्मॉल है, तो इट मे बी दैट इज नॉट डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। तो वही कह रहा है कि स्मॉल एंड ग्रीन इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अरे बड़े की बात को छोड़ दो, ये छोटे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। इट कांट हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। एलॉन्ग द सैंड, अब आगे वो बता रहा है कि एलॉन्ग द सैंड, अगर सैंड मीन्स आप जानते हो सॉइल और सैंड, बालू भी आप कह सकते हो। तो कह रहा है कि एलॉन्ग द सैंड ही ले आउट अंटिल आफ्टर, मतलब आप देखोगे धूप निकली हुई है तो क्या होगा, सांप जो होता है वो बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर आराम से लेटा रहेगा। लिखा है कि he is along the sand he lay until observed, जब तक वो लोगों के द्वारा देखा नहीं जाएगा तब तक वो कंफर्टली ही टेक रेस्ट कंप्लीटली, वह आराम से लेटा रहेगा, टेस्ट जो है रेस्ट करता रहेगा, आराम से वहाँ पे वो बैठा रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ट अवे, और जब तक उसका पीछा न किया, जब तक उसको दौड़ाया ना जाओ, उसको मारा ना जाओ। व्हाट यू अंडरस्टैंड? द स्नेक वाज लाइंग देयर टिल इट वाज स्पॉटेड और ऑब्जर्व अवे बाय द पर्सन होल्डिंग ए स्टिक, होल्डिंग अ स्टिक, यानी कोई एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में लाठी हो, ठीक है, और जब तक उसको पीछा न किया जाए लाठी के द्वारा, तब तक वो भी कंफर्टेबली आराम से सैंड पे आराम करता है, रेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके सामने डेंजर्स आते हैं, वहाँ से वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है। एंड नाउ ही वेनिस्ड इन द रिपल एमंग द ग्रीन स्लिम रेड, एमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, जो पतले जो स्लिम है, झाड़ियाँ हैं, जो बुशेज हैं, उस बुशेज में वो जाकर के छिपता है। He vanished, disappeared, he disappeared the ripple. He disappeared in the ripple of water. Ripple of water, जैसे मान लो आप पानी देखते हो, पानी में कुछ चीज़ डालते हो तो पानी में क्या होती है? तरंगे उठती हैं, ऐसे ऐसे करके तरंगे उठती हैं, किसको आप बोलते हो? यानी पानी के ऊपर से तैरते हुए, रिपल करते हुए, वो कहाँ चला जाता है? बुशेस में जाता है, झाड़ियों में जाता है, ठीक है। तो ये एमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, वो उस चीज जगह क्यों चूज करता है? उस ग्रीन स्लिम रेड्स को क्यों चूज करता है? क्योंकि पोएट ये बता रहा है कि स्नेक किस कलर का है? ग्रीन कलर का। स्नेक किस कलर का है? ग्रीन कलर का। जब स्नेक ग्रीन कलर का है तो निश्चित रूप से वो उस प्लेस को, ग्रीन प्लेस को चूजेगा ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके। जैसे कैमेलियन होता है, अगर वो अपने कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ऐसे ही जो स्नेक है, जो ग्रीन कलर स्नेक है, ही वांट टू हाइड इटसेल्फ इन द बुशेस, वो अपने झाड़ियों में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आपको समझ में आ गई होगी पोएम। अगर आपको समझ में आ गई है तो गुड, आई होप you like this video, and if you like it you must subscribe my channel KKB, share in your group. Thanks to watch my video. Okay.